fundal height and risk factors in pregnancy. So during the assessment for diagnosis of pregnancy, we should know the risk factors also and the fundal height. So with the help of that fundal height measurement, we can get the gestational age of the fetus in the weeks. So how to calculate the fundal height we discuss now. फंडल हाइट में क्या करते हैं, व्हाट इज द फंडल हाइट. फंडल मीन्स द अबव, जो अपर पोर्शन रहता है यूट्रस का. समझो ये आपका यूट्रस है, तो ये जो यहाँ पे जो पोर्शन रहेगा दैट इज फंडस. ये बॉडी रहता है, दिस इज नेक ऑफ द यूट्रस, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका सर्विक्स. सो दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस. तो हमको क्या करना है, यूट्रस की फंडल हाइट मेजर करनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दैट वी गेट द एज ऑफ द फिटस. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द फंडल हाइट. तो अभी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे. समझो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है. सो इन व्हेन देयर इज 12 वीक्स कंप्लीटेड, वी गेट द फंडस हियर. ओके, दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस. सो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हमको फंडस लगेगा एट 12 वीक्स. देन 16 वीक्स तक कहाँ तक आएगा, 16 वीक्स तक हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस. दिस इज द हाफ वे. At 16 weeks we get the fundus between the umbilicus and the symphysis pubis. Okay, so like this we can measure the fundal height. It increases according to the weeks. So in this case, when we get the fundal means when we measure the fundal height, we should place the hand above the fundus, ulnar side of the palm, and then place the tape measure 1/8 at the symphysis pubis and then stretch it till the फंडस. तो फंडस पे हम लोगों को क्या करना है, पहले हाथ रख के फंडस कहाँ है वो हमको एग्जामिन करना है, फिर वहाँ पे मार्क करना है एंड देन प्लेस द टेप मेजर फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू दी फंडस. सो जो जितनी भी मेजर आपने किया है वो सेंटीमीटर में मेजर करना है, और जितना सेंटीमीटर फंडल हाइट रहेगा उतनी वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी पेशेंट की प्रेगनेंसी रहेंगी. तो it is equal to the weeks of the fetus, that is fetus age in the weeks according to the fundal height in centimeters. Okay, so अगर तो अभी इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो यूट्रस की साइज बढ़ती है तो वो अप टू दी जिफॉइड प्रोसेस आता है, जिपिस्टर्नम जहाँ पे हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ तक वो 36 वीक्स तक आ जाता है. मीन्स यहाँ पे 36 वीक्स तक वो आ जाएगा. तो ये आपका 36 सेंटीमीटर्स होगा, दैट इज 36 weeks of fetus. So it is equal to the fundal height in weeks. Okay, so this way we can get the fundal height, and we measure this in the second or third trimester of pregnancy, so that we get the accurate fundal height. And we should observe the patient, and in assessment we should take the measurement. We get the fundal height in centimeter, and as well as we get the gestational age of fetus in the weeks. So to get the gestational age, we perform the fundal height measurement. Okay, so this is also the most important topic or the part of the pregnancy assessment or diagnosis of pregnancy. When we assess the mother who is pregnant, during that we should know the maternal risk factors also during assessment. It is not the part of diagnosis of pregnancy, but it is the very important to know the condition of pregnant woman during the pregnancy to less the risk factors for the fetus. So first part is maternal age. In maternal age, below the 20 years of the age of the woman and above 35 years, these women are at risk to it is risky to for the fetus or in perinatal process. So we should know the maternal age, means if the woman is below 20 and above 35, it is at risk. Okay, second is nutrition. हमको ये भी देखना है कि अगर वुमन प्रेग्नेंट है तो डाइट कैसे ले रहे हैं. इट शुड बी न्यूट्रिशियस फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर एज वेल एज द फिटस. देन आता है जेनेटिक कंडीशन. जेनेटिक कंडीशंस में क्या आएगा, कुछ अगर जेनेटिक डिफॉल्ट है या फिर जो भी उनका इनहेरिडिटरी डिसीज कंडीशन रहता है किसी किसी फैमिलीज में, तो इट ऑल्सो अफेक्ट द फिटल डेवलपमेंट. So we should know the genetic conditions and we should take the history of the patient about this. देन आता है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में क्या आएगा कि अगर मदर प्रेग्नेंट है तो वो एंटीनेटल केयर ले रही है कि नहीं, विजिट हॉस्पिटल को कर रही है कि नहीं, ये भी हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है. और इसके बारे में उन लोगों को
हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा पॉजिटिवली रह सके। देन अब्यूज एंड वायलेंस, अगर जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो अब्यूज की वजह से है या फिर उसको अब्यूज किया जा रहा है, फिजिकल अब्यूज जैसे रहता है, कोई किसी किसी के घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इसमें इससे भी बहुत सारे मदर्स जो है वो फेस करती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, तो ये भी हमें देखना है बिकॉज इट्स ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट टू द प्रेगनेंसी। Then medical conditions. In medical conditions, some mothers having the diabetes or hypertension, any heart diseases. So we should know the medical conditions of that pregnant woman. अगर हमें पता होगा तभी हम लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या फिर कौन सी ट्रीटमेंट उसको अलग से स्टार्ट करनी है, उसके लिए वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो वी शुड नो द मेडिकल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। देन एसटीडी इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इनमें ये सबसे मेन रहता है क्योंकि बहुत सारे जो डिसीज रहते हैं, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया या फिर HIV हो गया, तो ये हम सबको पता है कि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फिटस तक जा सकते हैं, तो फिटस को कंजेनाइटल एनोमलीज या फिर डिफॉर्मिटीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये भी हम लोगों को असेसमेंट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। देन वायरल hepatitis, not only hepatitis but there are so many viral diseases may cause the risk to the fetus, that is viral hepatitis. Then there is also the HIV. Then there are so many viral conditions in देन सब्सटेंस अब्यूज पे क्या आएगा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स। अगर वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है वो अल्कोहल ड्रिंक करेगी तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली फिटल एनोमलीज या फिर डिफॉर्मिटीज या फिर उसको कोई भी कंजेनाइटल डिसीज होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो ये भी हम लोगों को असेस करना होता है कि वुमेन कोई इसमें सब्सटेंस में अब्यूज तो नहीं है, दैट इज अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स और सो मेनी थिंग्स. So these are the maternal risk factors we should know during the assessment of the pregnant woman. So if you have any question, please ask, please comments and please share my videos. Thank you for watching my video. Bye bye.